Okay, today we'll start with the next property of the transition element, and the next property of the transition element, that is number 5, that is color. What is the color here? The first thing in the color, I means most of the transition element, they shows the color. Like for example, copper sulfate is blue in color. Then we can say nickel chloride, it is green in color. So copper and nickel are the transition element. So most of the transition element shows the color. So what is the first point I'll say here? The ionic and covalent compounds formed by the transition element are colored. मतलब हमारे transition element can form ionic compound or they can form covalent compound, but whether it is ionic or covalent, but they are colored. Yes, the ionic and ionic means what? The compound formed by loss or gain of electron. One atom has a tendency to lose electron and other one has a tendency to gain electron. Covalent means what? Where both the atom will share the electron pair. So either that compound can have the ionic bond or the compound can have a covalent bond, but if it is of transition element, then they are colored. So what is the first point we have said? The ionic and covalent compound formed by the transition elements are colored. Now, why they are colored? What is the reason behind them? The reason behind is them. The transition elements contains unpaired electrons in their d orbital. मतलब why they shows the color? The main reason is what? That all the transition element or those who are showing the color, the one who shows the color contains what? Unpaired electron in their d orbital. मतलब उनके d orbital में compulsory क्या होना चाहिए? Unpaired electron होना चाहिए. मतलब अगर 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 कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट अगर कलर बता रहा है या उसके पास अगर कलर है, इसका मतलब उस ट्रांजिशन एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. और कहाँ पे? इन देयर डी ऑर्बिटल. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन. करेक्ट. Now normally I will just take one example. Suppose for example, if we take the example, but before that I'll just explain here. Normally we know that here we have a normal light. This is called as a visible light. Visible, normal visible, or we can say white light. And normal white light, what we see, the light coming from the sun, the light coming from the bulb, the light coming from the tube light, it is called as a normal white light. And that white light is made of how many colors? 7 colors. And 7 color of the light are called as a Vibgyor. Vibgyor, violet, indigo, they are not shown here. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. So normal white light is made up of 7 color, and each color has a particular wavelength. See, like for example, blue color has a wavelength of 430 nanometer, green has a wavelength of 490 to 560,
Yellow has a wavelength of 560 to 580. Means every color has a definite wavelength. Means every color has a definite energy present in it. मतलब हमारे पास जो 7 colors है, हर एक कलर में क्या है एनर्जी, हर एक कलर में क्या है एनर्जी, इतना ही ध्यान में रखो। हमें इसे वेवलेंथ से वगैरह कुछ इतना लेना देना नहीं है, खाली क्या ध्यान में रखोगे कि हमारे पास जो नॉर्मल व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स है और हर एक कलर्स के अंदर क्या है एनर्जी। मतलब अगर हम लोग ने बोला कि हमारा सब्सटेंस अगर ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो कितना वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, 490 से लेके 560 तक एब्जॉर्ब करेगा ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर अगर एब्जॉर्ब किया रहेगा तो ग्रीन कलर का वेवलेंथ इस रेंज में। तो हमें इतना ही ध्यान में रखना है कि क्या ध्यान में रखना है हमें कि हमारा जो नॉर्मल व्हाइट लाइट है उस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट। उसे हम लोग बोलेंगे विजिबल लाइट। एंड विजिबल लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, correct, and each color has got some energy present in it, और हर एक कलर के साथ एक पर्टिकुलर अमाउंट का क्या है एनर्जी। तो इतना ध्यान में रखना। ओके, आई एम जस्ट गोइंग फर्दर नाउ। So I'll just even write like we have visible light, we have visible light, visible light, or you can say white light. It is made up of 7 colors, and each color has definite amount of energy present in it. Okay, एक हमारा पॉइंट है कि हमारे पास जो हमारा विजिबल लाइट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट, व्हाइट WHI व्हाइट लाइट है। इट इज मेड ऑफ हाउ मेनी कलर, 7 कलर, 7 कलर, and each color has a definite amount of energy present in it. Okay, now I can take the example. For example, we have titanium 3 plus, titanium 3 plus, or I can say here we are having titanium H2O 3 plus. 1 minute. Suppose we have here titanium H2O 6 3 plus is the example. Now in this compound, titanium or titanium has an oxidation number of 3 plus. And हमारा compound, this is called as a complex compound. Okay, in this compound we are having titanium H2O 6 3 plus, and in this compound titanium has which oxidation number, 3 plus. Now we know that normal titanium whose atomic number is 22, its electronic configuration is argon 3d2 4s2. Normal titanium whose atomic number 22, electronic configuration argon 3d2 4s2. If I will write here titanium 3 plus, titanium 3 plus means what? Loss of 3 electron. So loss of 3 electron will have the configuration argon. We'll lose 2 electron from here and 1 electron from here. So what will have a 3d1 4s0. So titanium 3 plus has only 1 electron in the d orbital.
And if I'll draw the d orbital, there are 5 d orbital. 1, 2, 3, 4, 5. 5 d orbital. And in one of the d orbital, we have this electron. Okay, 5 d orbital. And I'll say here all 5 d orbital have same energy. All ये जो हमारे 5 d orbitals है, all 5 d orbital have same energy, correct? Or they are called as a degenerate. मतलब अगर ऑर्बिटल्स का पांचों ऑर्बिटल्स का एनर्जी अगर सेम रहेगा या ऑर्बिटल्स का एनर्जी अगर सेम है तो वी कैन कॉल देम एज व्हाट ऑर्बिटल्स आर हैविंग द सेम एनर्जी or the orbital with same energy can be called as what degenerate orbital. They are called as a degenerate orbital. They are called as a degenerate orbital. Correct. तो अभी यहाँ पे क्या देखोगे हमारे पास d ऑर्बिटल है और उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है. तो इफ आई जस्ट राइट दिस वे 1 2 3 4 5 and one electron is here. So initially all d orbital have same energy. In the beginning all 5 d orbitals are having same and we know the name. अगर मुझे इनका नेम लिखना रहेगा तो फर्स्ट का नेम क्या रहेगा dxy, second will be yz, third will be dxz, next one will be what dx square minus y square, and the last one would be dz square. We know the 5d orbital. जैसे हमारे पास p के 3 ऑर्बिटल है px py pz. Similarly हमारे पास d के 5 ऑर्बिटल्स है and they are labeled as what dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz. And in the beginning all the d orbitals are having same energy. But लेकिन जब ये टाइटेनियम, ये हमारा टाइटेनियम 3+ जो है जब वाटर को अप्रोच करेगा, बिकॉज टाइटेनियम किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वाटर के साथ, तो जब ये टाइटेनियम वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे जो हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स है जिनका एनर्जी सेम है, they will split up into two sets of orbital. They will split up into two sets of orbital. Here we'll have 3 orbital, and 3 orbitals with lower energy, and 3 orbital with lower energy are dxy, dyz, dxz. These are the orbitals with lower energy. Orbitals with lower energy. Out of 5, 3 orbitals with lower, which 3 orbital dxy, dyz and dxz, and the remaining two orbit, sorry, कुछ नहीं यहाँ पे empty है. Remaining two with higher orbital, like we can say d x square minus y square and dz square. They are called as what orbitals with higher energy. Orbitals with higher energy. So what we have said in the beginning, all the 5d orbitals are having same energy. तो यहाँ पे हमारा ये कौन सा रहेगा स्ट्रक्चर टाइटेनियम 3+. Titanium 3+, all the 5d orbitals are having same energy, correct? But when this titanium start approaching towards the water, HTI H2O6, when titanium start approaching towards the water,
the phi orbital with same energy will split up into two sets of orbital, three orbital with lower energy like dxy, dyz, dxz, and two orbitals with higher energy, that is dx square minus y square and dz square. And out of that, what happened? And here, between them, there is an energy difference. Between them, there is a difference in energy, delta E. And then this electron goes to one of the lower orbital. Electron goes to one of the lower orbital. So now in the beginning, the electron is in the one of the lower orbital. And now this electron, when the titanium wants to form the bond with water, so when titanium, that is titanium 3 plus, wants to form with the water, that time this electron will jump from the lower energy level to higher energy level. And electron will jump from lower energy level to higher energy level. That means electron will require energy. Electron will require some energy, and electron requires some energy means what? Electron will absorb some particular color, or electron will absorb particular wavelength of that is of particular color. करेक्ट. इसलिए मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे जाना है तो इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. एनर्जी चाहिए मतलब उसको कुछ ना कोई तो कलर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. तो जो कलर वो एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो क्या करेगा? एमिट करेगा. कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या करेगा? एमिट करेगा. लाइक इन दिस कंपाउंड So in this case, what happened? While electron going from this energy level to here, it will absorb some energy. It will absorb energy. Say energy, and energy absorb karega means what? It will absorb some particular color. It will absorb particular color. तो कलर कौन सा एब्जॉर्ब करेगा? तो बेसिकली इट एब्जॉर्ब येलो कलर, और इट एब्जॉर्ब्स द कलर विद द येलो वेवलेंथ. येलो, लाइक फॉर एग्जांपल देखो, अगर उसने फॉर एग्जांपल येलो कलर एब्जॉर्ब कर दिया, तो येलो कलर एब्जॉर्ब करने के बाद येलो कलर का जो अपोजिट कलर है या कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो कौन सा आ रहा है यहाँ पे? वायलेट कलर. तो येलो कलर की लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा, और येलो कलर एब्जॉर्ब करने के बाद जो कलर एब्जॉर्ब नहीं किए वो हमें दिखाई देंगे. तो ये कलर इतने एब्जॉर्ब नहीं किए, और इतने कलर में जो प्रोमिनेंट कलर रहेगा वो हमें दिखाई पड़ेगा. तो हमें टाइटेनियम H2O6 3+ का जो कंपाउंड है कैसे दिखाई देगा? पर्पल. पर्पल मतलब वायलेट कलर. तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जंप करना है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या एब्जॉर्ब करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. एनर्जी मतलब कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा? येलो कलर एब्जॉर्ब करेगा. येलो कलर एब्जॉर्ब, लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद मतलब आउट ऑफ 7 कलर येलो कलर इज एब्जॉर्ब. सो अदर 6 कलर आर एमिटेड, एंड इन दैट 6 कलर ये येलो कलर का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा. एंड दैट्स व्हाई वी सी दैट, देयरफॉर वी सी दैट टाइटेनियम H2O6 3+ is purple in color. It is purple in color, and purple means what? It is a combination of red and blue. Purple means it is a combination of the red and blue. मतलब ये हमें पर्पल मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप करने के लिए आउट ऑफ 7 कलर विच कलर विल एब्जॉर्ब? येलो कलर. तो येलो कलर का लाइट एब्जॉर्ब करेगा मतलब उसको उतना एनर्जी चाहिए. तो जो कलर एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो एमिट होगा, और वो कलर हमें दिखाई देगा. वो कौन सा कलर हमें दिखाई देगा? पर्पल. पर्पल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? रेड एंड लाइट. और इस तरह से हमें कलर दिखाई देता है. ओके, आई टेक वन मोर एग्जांपल. सी अगेन आई विल एक्सप्लेन. In the beginning, all the 5d orbitals are having same energy in case of titanium 3+ ion. But the minute titanium start approaching the water to form the compound, titanium start approaching the water to form the compound, तब क्या होगा? All these 5 orbital of the same energy will split up into 2 set of the orbital, 3 orbital with lower energy and 2 orbital with higher energy. Electron will remain in the lower energy orbital, but if this electron want to jump from to, if मतलब उसको jump करना ही है तो ये compound form होगा. टाइटेनियम का अगर वाटर के साथ कंपाउंड फॉर्म करना है तो इलेक्ट्रॉन हैज टू जंप फ्रॉम द लोअर ऑर्बिटल टू हायर ऑर्बिटल. इसके इलेक्ट्रॉन को सप्लाई क्या करना पड़ेगा? एनर्जी.
तो एनर्जी मतलब वो पर्टिकुलर कलर एब्जॉर्ब करेगा। कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा? येलो कलर एब्जॉर्ब करेगा। तो येलो कलर एब्जॉर्ब करने के बाद येलो का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो हमें दिखाई देगा, और इसीलिए हमें टाइटेनियम H2O6 3+ इज पर्पल इन कलर। हमें कैसे दिखाई देगा? पर्पल इन कलर दिखाई देगा। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे जंप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमें कहाँ पे मिलता है? दैट एनर्जी वी गेट इन द विच कलर? विजिबल लाइट। मतलब हमारे नॉर्मल लाइट में वो एनर्जी है, हमारे नॉर्मल व्हाइट लाइट में वो एनर्जी है, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ओके। और उसे अभी रिलेटेड और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। Yes, I'll take the second example. In case of in copper 2+ salt. Copper 2+ salt means normally we know that copper sulfate, and the copper sulfate salt is blue in color. मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्ट हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। इसका मतलब कॉपर 2+ में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से कॉपर एटॉमिक नंबर इज 29 and electronic configuration is argon 3d9 3d10 or 4s1 a copper. But if I write copper 2+, तो copper 2+ क्या रहेगा यहाँ पे? argon मतलब 2+ मतलब loss of 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बनेगा? 4s0, और यहाँ पे आएगा 3d9। तो 9 मतलब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 2 3 5 orbital, and D9 means what? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हमारे सबसे पास हमारे पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कंडीशन। मतलब हमारे पास डी ऑर्बिटल में क्या चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी क्या होगा? मतलब जब हमारे 5 ऑर्बिटल जो रहेंगे, यहाँ पे जो हमारे इन द बिगिनिंग 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहेंगी, तो ये हमारे 5 ऑर्बिटल्स है जिनका स्टार्टिंग में एनर्जी सेम रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब 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 ये हमारा कॉपर 2+ आयन है, जिसमें ये 5 ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम है, लेकिन जब ये कॉपर 5 ऑर्बिटल जब अलग अलग सेट में डिवाइड होगा, जब ये कॉपर सल्फेट के साथ बॉन्ड फॉर्म करना चाहेगा, तो क्या होगा? दिस विल स्प्लिट अप इनटू 2 सेट, 3 ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी एंड 2 ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी। 3 ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी मतलब, लेकिन यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और फिर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मतलब यहाँ पे जो हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इधर तक जंप करना है, तो इट विल एब्जॉर्ब सम लाइट, एब्जॉर्ब सम light, and basically it absorb red light. It absorb red light, or red the complementary color of red light is blue. The complementary color of red light is what? Blue. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ तक जंप करने के लिए अगर रेड लाइट अगर एब्जॉर्ब कर दिया है, रेड लाइट अगर एब्जॉर्ब कर दिया है, तो मे भी हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे एक ऑर्बिटल एम्प्टी है। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ तक जंप करना चाहेगा तो उसको एनर्जी लगेगा। एनर्जी कौन सा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड्स टू रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और रेड लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है? इसलिए हमें कॉपर सल्फेट सॉल्ट ब्लू कलर दिखाई देता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट आउट ऑफ 7 कलर, one particular color will be absorbed, and a color which is not absorbed, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई दे देगा। इस तरह से हमें ट्रांजिशन एलिमेंट कलरफुल दिखाई देते हैं। ओके। अभी हमें क्या देखना है कि हमारा जो कलर है वो कलर बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है? व्हाट इज द रीजन फॉर द कलर? मतलब व्हेन डू दे शो द कलर हियर?
the color of the transition element the color of transition metal ion relates to four things. That is very, very important. So normally they ask in the exam, the color of the transition element depends upon which factor? Which factors? The first one we can say here, that is first thing is what? Presence of unpaired डी इलेक्ट्रॉन. सबसे पहले उनके पास क्या होना चाहिए? अनपेड, मतलब डी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन डी कैसा होना चाहिए? अनपेड होना चाहिए. मतलब अगर यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर रहेंगे तो कलर नहीं बताएगा. तो एक तो इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए हमारे पास? अनपेड होना चाहिए. फर्स्ट थिंग इज व्हाट? प्रेजेंस ऑफ अनपेड डी इलेक्ट्रॉन. सेकेंड, देयर शुड बी व्हाट? डी डी ट्रांजिशन. वहां पे कंपल्सरी क्या होना चाहिए? डी डी ट्रांजिशन. ट्रांजिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन शुड एबल टू जंप फ्रॉम वन डी ऑर्बिटल टू अदर डी ऑर्बिटल. तो यहाँ पे भी हमारे डी ऑर्बिटल ही है, यहाँ पे भी हमारे डी ऑर्बिटल ही है, बट इलेक्ट्रॉन शुड जंप फ्रॉम वन डी ऑर्बिटल टू अदर डी ऑर्बिटल. तो ये क्या करेगा? वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जो कलर एब्जॉर्ब नहीं करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा. तो इसलिए सबसे पास क्या होना चाहिए वहां पे? सबसे पहले तो अनपेड डी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. साथ ही साथ वहां पे क्या होना चाहिए? डी डी ट्रांजिशन होना चाहिए. एंड थर्ड थिंग, द कलर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर of ligands attached to the metal ion. Nature of ligands attached to the metal ion, मतलब हमारे मेटल आयन को कौन सा लिगैंड, एक्चुअली लिगैंड कंसेप्ट क्या है वो हम लोग आगे वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे डिटेल में, बिकॉज हमारा वो चैप्टर उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा. लेकिन हमारे यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ. लिगैंड का मतलब क्या है? देखो कि इस एग्जांपल में टाइटेनियम किसका कंपाउंड बॉन्ड फॉर्म करे? वाटर के साथ. तो वाटर हमारा लिगैंड है. यहाँ पे टाइटेनियम वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. एंड हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर? 6 वाटर मॉलिक्यूल. इस वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग लिगैंड्स बोलेंगे. लेकिन लिगैंड्स का जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके. तो यहाँ पे क्या उन्होंने बोला है? नेचर ऑफ द लिगैंड अटैच टू द मेटल आयन, मतलब हमारा मेटल आयन कौन से लिगैंड के साथ अटैच किया, उसका नेचर. एंड द नेक्स्ट वन, दैट इज द geometry of the complex formed by the metal ion. Geometry of the complex formed by the metal. हमारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा उस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री क्या रहेगा, उससे भी हमें कलर पता चलेगा. तो अल्टीमेटली हमारा जो कलर है वो कलर कौन से फैक्टर के डिपेंड करेगा? द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन व्हाट? द फर्स्ट थिंग, प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन. अगर हमारे पास डी इलेक्ट्रॉन रहेगा तो डी इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? वन डी ऑर्बिटल दूसरे डी ऑर्बिटल में जाना चाहिए. डी डी ट्रांजिशन होना कंपलसरी है. उसके बाद वो हमारा कंपाउंड में मेटल आयन कौन से लिगैंड के साथ अटैच है, उसका नेचर. एंड लास्ट वन, हमारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री क्या है. ऑल दिस फोर फैक्टर डिसाइड्स द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड. ओके. ओके. एक और एक एग्जांपल हम लोग ले लेंगे यहाँ पे. Now we'll see one example. How color of transition metal ion
depends upon ligand and geometry of the complex formed by the metal ion. See here, अभी हमें तो just दो फैक्टर हमने देखे थे. हमने यहाँ पे क्या देखा था? The color of the metal ion depends upon the ligand and geometry of the complex form. तो कैसे डिपेंड करेगी वो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं. So here how the color of the transition metal ion depends upon the ligand, the nature of the ligand and geometry of the complex formed by the metal ion. Suppose for example we can say here the first in that when cobalt chloride now in cobalt chloride the formula is what? CoCl2. The cobalt is in the 2 oxidation state. In cobalt chloride the formula is what? CoCl2. But in that cobalt in the which oxidation number? +2. In cobalt chloride or when cobalt chloride is dissolved in water, it forms a pink solution of the complex COH2O6 2+, which has octahedral geometry. तो देखो हमारा कोबाल्ट क्लोराइड जो सॉल्ट है, कोबाल्ट क्लोराइड COCl, when dissolved in water में डिसॉल्व करोगे it forms the pink solution. और पिंक सोल्यूशन क्यों? मतलब एक कोबाल्ट क्लोराइड का CO2 प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा? COH2O6 2+. ये हमारा वाटर यहाँ पे लिगैंड है. कोबाल्ट हमारा ट्रांजिशन मेटल आयन है जो CO2 प्लस है और वाटर हमारा लिगैंड है, बट विच हैज अ ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री. मतलब कोबाल्ट ने वाटर के साथ कौन सा कंपाउंड फॉर्म किया है? ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड फॉर्म किया है और उसका कलर पिंक है. करेक्ट. but when this solution मतलब पहले क्या किया था? कोबाल्ट क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो क्या बना? COH2O6 प्लस COH2O6 प्लस. ये हमारा सॉल्यूशन बना. और ये जो सॉल्यूशन है, बट व्हेन दिस सॉल्यूशन is treated with concentrated hydrochloric acid. तो इस सॉल्यूशन में क्या ऐड करोगे आप? concentrated hydrochloric acid अगर ऐड करोगे it turns deep blue. मतलब यहाँ पे हमें जो पिंक कलर मिल रहा था तो किसमें चेंज होगा? डीप ब्लू में. एंड दिस चेंज एक डीप ब्लू कलर में क्यों मिल रहा है? बिकॉज दिस चेंज is due to the formation of another complex COCl4
2-, यहाँ पे हमारा ये लिगेंड है। इस चेंज मतलब पहले क्या था हमारे पास, कोबाल्ट को जब वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो हमें वाटर में क्या मिला था, COH2 मिला था, जिसका कलर पिंक था और उसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल था। बट व्हेन दिस सॉल्यूशन ट्रीटेड विद व्हाट, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, हमें क्या मिला, डीप ब्लू कलर मिला। डीप ब्लू कलर क्यों मिला, क्योंकि COH2O6 ने HCl के साथ क्या फॉर्म कर दिया, HCl के साथ फॉर्म कर दिया COCl4 which has a tetrahedral structure, which has a टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। से क्या स्ट्रक्चर है, टेट्राहाइड्रल है, मतलब ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल बनेगा। मतलब जब यहाँ पे वाटर हमारा लिगैंड था तब कोबाल्ट H2O6 तो ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री था, लेकिन जब इसे HCl में डिसॉल्व कर दिया या HCl के साथ जब रिएक्ट कर, क्या मिला, COCl4, Cl हमारा लिगैंड Cl हो गया, यहाँ पे लिगैंड वाटर था, यहाँ पे लिगैंड हमारा Cl हो गया, एंड विच हैज विच ज्योमेट्री, टेट्राहाइड्रल। तो ऑक्टाहाइड्रल का कलर पिंक था और टेट्राहाइड्रल का कलर डीप ब्लू था। तो इस तरह से मतलब हमारे कलर, तो अगर मैं रिएक्शन लिखूंगा तो COH2O6 2+ which has a pink color, उसमें HCl मतलब क्या ऐड किया था, Cl-, क्योंकि ये हमारा लिगैंड है, यहाँ पे वाटर लिगैंड था, बाद में HCl मतलब Cl ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, COCl4 2-, COCl4 2- प्लस क्या मिलेगा, वाटर, बैलेंस वाटर। तो यानी कि इसका कलर है डीप, इसका ज्योमेट्री था, ये हमारा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स था, और ये हमारा टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब ज्योमेट्री चेंज होने का कलर भी क्या हुआ, चेंज हुआ। तो बैलेंस करोगे तो H2O6 से H2O6 है, Cl4 है तो Cl4 है, CO1 है और CO1 है। इक्वेशन इज बैलेंस, इक्वेशन इज बैलेंस। ओके, इस तरह से हमें क्या बोलना, हमारी हेडिंग क्या था कि अगर हमारा लिगैंड चेंज होगा और अगर हमारा ज्योमेट्री चेंज होगा तो कलर भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो लिगैंड अगर तो ये हमारा लिगैंड वाटर है और यहाँ पे लिगैंड हमारा क्लोरीन है, geometry octahedral, color is pink, geometry tetrahedral, color is what, pink. So what they want to say, the color of the transition metal depends upon what, the nature of the ligand and the geometry of the complex formed by the transition metal ion, by the transition metal ion. So ultimately what I can say towards the end, if they ask in the exam what is the color depends upon, so you should answer this 4 point. The color of the transition metal ion depends upon what? Presence of unpaired electron. Second, on DD transition, nature of the ligand attached to the metal ion, and geometry of the complex formed by the metal ion. Okay, now we'll take the example based on it. Example based on it means who will show the color and who will not show the color. The first example I will write here. Copper 2+ salt are colored. Copper 2+ salt are colored, but those of Zn2+ salt are colorless. The copper 2+ salt are colored, मतलब उनको colored है, but zinc 2+ salt are colorless. So what is the reason behind it? So अगर मैंने सबसे पहले copper लिखा, copper atomic number 29, आपको configuration आना चाहिए, and what is right here, argon. Normally what we write here 3d9, लेकिन copper के केस में क्या होता है 3d10 and 4s1. अगर मैंने यहाँ पे copper 2+ लिखा तो copper 2+ क्या आएगा यहाँ पे, argon,
argon and 3d 2+ मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज करोगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो क्या आएगा 3d9 4s0 एंड d9 का मतलब अगर हमने ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे हमारे पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. We are having one unpaired electron, therefore copper 2+ salt shows color. But in Zn2+, now you can say in zinc Zn, atomic number is 30. Atomic number is 30, so electronic configuration is what? Argon 3d10 4s2. Argon 3d10 4s2. Okay. So now here we can say here Zn2 plus argon Zn2 plus इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे 3d10 4s0. देखो जिंक एटॉमिक नंबर इज 30, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा यहाँ पे argon 3d10 4s2 और यहाँ पे 2+ करोगे तो मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 3d10 बचेगा. और अगर मैंने इनका d ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन अगर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या आएगा d10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 all electrons are paired. और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास पेयर्ड है. तो हमारा रूल क्या है कि हमारे पास d इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और d में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक तो भी क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है बट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, नो unpaired d electrons, therefore zinc 2 plus salts are colorless. Zinc 2 plus salts are colorless. So basically what we have seen ki if we want any particular element to show a color, we supposed to have the unpaired electron. We are supposed to have the unpaired electron. We'll take one more example. Scandium 3 plus is colorless while titanium 3 plus is colored. See here, scandium 3 plus is colorless while titanium 3 plus is colored. So I'll write down here first scandium. Atomic number is 21. तो मैं atomic number मालूम होना चाहिए 21. Configuration will be what? Argon 3d 3d1. 21 मतलब 3d1 4s2. When I write here scandium 3 plus, loss of 2 electron from here and loss of 1 electron from here. So what we get here? Argon 3d0 and 4s0. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्कैंडियम 21, आर्गॉन 3d1 4s2, बट स्कैंडियम 3 प्लस में क्या हो रहा है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो कंप्लीट d ऑर्बिटल है but d orbital is completely empty. So since d orbital is completely empty, d orbital is completely empty, therefore scandium 3 plus is colorless. हमारा रूल क्या है कि हमारे पास एक तो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जंप करने का सवाल ही नहीं आता, डी ट्रांजिशन वहां पे होगा ही नहीं.
यहाँ पे since d orbital is completely empty, scandium 3 plus is colorless. अभी टाइटेनियम 3 प्लस देखो, टाइटेनियम 3 प्लस की जब बात करोगे तो टाइटेनियम पहले नॉर्मल एटॉमिक नंबर इज 22. यहाँ पे क्या लिखोगे, आर्गॉन 3d2 4s2, करेक्ट. जब मैं यहाँ पे टाइटेनियम 2 प्लस की बात 3 प्लस की बात करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे, आर्गॉन 3 प्लस मतलब लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, तो d1 मतलब it has got one unpaired electron, so here we have got one unpaired, we have got one unpaired electron, and because we have got one unpaired electron, titanium 3 plus is colored. The basically हमने क्या देखा, देखो यहाँ पे कॉपर के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कॉपर विल शो द कलर. जिंक के पास इलेक्ट्रॉन्स है बट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, एंड बिकॉज ऑल आर पेड नो कलर, आर कलरलेस. स्कैंडियम में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डी ऑर्बिटल इज कंप्लीटली एम्प्टी एंड देयरफॉर इट इज कलरलेस. और टाइटेनियम के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इट इज शोइंग अ कलर. बेसिकली व्हाट वी हैव सीन हियर, if you want any element, any transition element to show a color, it should contain unpaired electron in the d orbital. It should contain unpaired electron in the d orbital, the main thing. So basically the very first point अगर आपको याद रहेगा तो हमने first point में mention किया था यहाँ पे कि the transition element contain unpaired electron in their d orbital. तो उनके d orbital में अगर unpaired electron रहेगा तो ये वो कलर बताएंगे. That is the main important reason to show the color. Okay. Okay, so we are done with the color property and we'll stop it over here. Remaining part we'll do it in the next day.